था जिसने ताकतवर दुश्मन को बिन हथियार हराया था। सत्य, अहिंसा और शांति के बल पर जो लड़ता था, उस महान संत को ज़माना गांधी गांधी कहता था। इसी दिन एक फरिश्ता और जन्मा था भारत की इस भूमि पर। सादगी और ईमानदारी रही शास्त्री की पहचान। सत्ता पाकर भी नहीं था उन्हें तनिक भी अभिमान। आज इन फरिश्तों के ही कारण भारत महान है बन पाया। इन सपूतों की वजह से हमने है अपना अस्तित्व पाया। सुप्रभात। आप सभी यहाँ गांधी तथा शास्त्री जी की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम राम धुन से कर रहे हैं। आप सब भी हमारे साथ गाइएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आगे मैं कक्षा 10th A से लाभांशी बंसल को आमंत्रित करती हूँ कि वह आएं और अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Greetings to everyone gathered here on the occasion of Gandhi Jayanti. I, Labhanshi Bansal, heartily welcome you all to celebrate this momentous day along with us. On 2nd October every year, India celebrates Gandhi Jayanti in remembrance and honor of the birth of Mohandas Karamchand Gandhi, who is famously referred to as a Mahatma Gandhi or Bapu, especially by children. He was given the title the Father of the Nation by Neta Subhash Chandra Bose for his relentless struggles in our journey of independence. Mahatma Gandhi was born in Porbandar, Gujarat on October 2nd, 1869 in British India in a Martian class family. He was 24 when he first left the country to pursue the law in the South Africa, where for the first time he encountered inequality due to time, his race and color, and was thrown out of the train because he didn't assemble his white co-passengers. When he returned to India to practice law, he was shocked to see the injustice around him, and his deep sense of doing justice was triggered. He always fought for what is right, participated in many non-violent civil rights movements, and led many campaigns like Dandi March, which is also called as Salt March, to protest against the illegally imposed salt tax, as this basic amenity was already finally available to us due to our coastal location, where thousands of people followed Gandhi to the Arabian Sea from his religious retreat in Ahmedabad. He also felt strongly about many unfair practices imposed by the British rule,
and fought against racism, the caste system, discriminating against people by claiming them as untouchables. And many such sociological inequalities due to this protest, he, along with his followers and many other freedom fighters, served their time in prison. He soon became the leader of the Congress Party as a result of his active interaction with people and the influence he had because of his keen interest in other affairs. And this only accelerated Mahatma Gandhi's strength as his followers and supporters grew as he does his opinions. He devoted his life relentlessly, working towards spreading awareness about the importance of equality, peace, and harmony in brotherhood. His principles still hold a great value and people still consider it to be the right path to follow. And the ideas were spread by the many of his disciples, literature, writers, and artists. Today, as we go about our life, let's remember and honor his philosophy by treating people with respect and equality, without any discrimination, and not conform to violence even at our worst. Let's lead a life in a peace by following the path of non-violence. On this day, let us pledge to follow the legacy he left behind and lead the lives in peace and harmony. Jai Hind. Thank you. धन्यवाद लाभांशी। लाभांशी के बाद मैं कक्षा 9th A से मेघा सिंह को आमंत्रित कर रही हूँ। मेघा सिंह आएँ और अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। Today I am here to deliver a speech on Lal Bahadur Shastri. Sri Lal Bahadur Shastri was born on 2nd October 1904 at Mughal Sarai, a small town 7 miles away from Varanasi in Uttar Pradesh. His father was a school teacher who died when Shastri was only a year and a half old. His mother, still in her 20s, took her 3 children to her father's house and settled down there. Lal Bahadur's small town schooling was not remarkable in any way, but he had a happy childhood despite the poverty that dogged him. He was sent to live with an uncle in Varanasi so that he could go to high school. As he grew up, he became more and more interested in the country's struggle for freedom from foreign yoke. He was greatly impressed by Mahatma Gandhi's denunciation of Indian princes for the support of British rule in India. Lal Bahadur Shastri was 16 when Gandhiji called upon his countrymen to join the non-cooperation movement. He began to engage regularly in anti-government activities and was several times detained. In 1928, following Mahatma Gandhi's call, he became an active member of the Indian National Congress. In 1951, with Jawaharlal Nehru as Prime Minister, he became the General Secretary of All India Congress Committee. Lal Bahadur Shastri became Prime Minister after Jawaharlal Nehru died in 1964. He was independent India's second Prime Minister. At the time of Indo-Pak War of 1965, he gave the slogan Jai Jawan, Jai Kisan, signifying the importance of farmers and soldiers. Shastri died after signing the Tashkent Pact on January 11, 1966 in Tashkent. Lal Bahadur Shastri was a man of common people who had always worked to uplift them. By doing every possible thing, he always attempted to make India better. Every one of us is fortunate to have a leader like him. To all of us, he is an inspiration. Thank you. अब मैं सिस्टर प्रिंसिपल को आमंत्रित कर रही हूँ कि सिस्टर आएँ और हम सभी को गांधी तथा शास्त्री जयंती की बधाई दें। Today, the 2nd October, the whole nation celebrate Gandhi and Shastri Jayanti. So on this great occasion, I wish all of you a very happy Shastri and Gandhi Jayanti. Let us follow the examples and the teachings set by these great noble souls. Because of their nobility, today we remember them and we celebrate this day. One of the great quotes of Gandhi which I like best is, he says, never hate humanity, because humanity is an ocean. If few drops of the ocean is polluted by someone, the ocean is still pure. Thank you. Once again, wish you
All the best and have a nice day. धन्यवाद सिस्टर प्रिंसिपल। कार्यक्रम का समापन इन पंक्तियों के साथ करना चाहूँगी। गांधी शास्त्री के सपनों सा भारत को बनाना है, विश्व गुरु के पद पर भारत को फिर से बिठाना है। इन्हीं आशाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को गांधी जी तथा शास्त्री जी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। सुप्रभात। जैसा आप सभी जानते हैं, आज 2 अक्टूबर है, यानी हमारे बापू का जन्मदिन, जिसे हम गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। गांधी जी हमारे भारत के राष्ट्रपिता थे। उनसे हमें कई चीज़ की सीख मिलती है। क्या आप जानते हैं, गांधी जी भी कई चीज़ों से सीख लेते थे। सबसे पहले वे अपने 3 बंदरों से लेते थे। क्या आप जानते हैं वे कहाँ से आए, क्या उनका अस्तित्व है? तो माना जाता है गांधी जी के ये 3 बंदर चीन से आए थे। एक दिन एक प्रतिनिधि मंडल गांधी जी से मिलने आए। मुलाकात के बाद गांधी जी को प्रतिनिधि मंडल ने भेंट स्वरूप 3 बंदरों का सेट दिया। उसे देखने बाद गांधी जी काफ़ी खुश हुए। गांधी जी ने अपनी पूरी संपूर्ण जीवन तक उन्हें संभाल कर रखा। गांधी जी के जीवन का एक हिस्सा बनकर रह गए। क्या आप जानते हैं गांधी जी के इन 3 बंदरों का अलग अलग नाम भी है? मैं गांधी जी का पहला बंदर मिज़ारू। मैंने अपने दोनों हाथ अपनी आँखों पे रखे हैं, जिससे मैं बुरा न देख सकूं। मैं आपको भी यही शिक्षा देता हूँ कि आप भी बुरा न देखिए। मैं गांधी जी का दूसरा बंदर कीकाजारू हूँ। मैंने अपने दोनों कान इसलिए बंद किए हैं जिससे मैं बुरा ना सुन सकूं, और आपको भी यही शिक्षा देता हूँ कि आप भी बुरा ना सुने। मैं गांधी जी का तीसरा बंदर इवाजारू हूँ। मैंने अपने दोनों हाथ मुंह पर इसलिए रखे हैं जिससे मैं बुरा ना बोलूं। मैं आपको भी यही शिक्षा देता हूँ कि आप भी बुरा ना बोलें। तो आपने देखा कि गांधी जी के बंदरों से हमें यह सीख मिलती है कि ना ही हमें बुरा देखना चाहिए, ना ही हमें कुछ बुरा सुनना चाहिए, ना ही कुछ हमें बुरा बोलना चाहिए। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम प्रांजल माथुर है। आज मैं लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर आप सभी के सामने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। शास्त्री जी के पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। वे एक शिक्षक थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की माता का नाम राम दुलारी था। शास्त्री जी का विवाह 1928 में हुआ। उनकी पत्नी का नाम ललिता देवी था। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। 11 जनवरी 1966 की रात को ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। शास्त्री जी के समाधिक स्थल का नाम विजय घाट है। शास्त्री जी ने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज मैं उनकी जयंती पर आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। अब मैं शास्त्री जी से संबंधित एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पैदा हुआ उसी दिन जिस दिन बापू ने था लिया जन्म, भारत पाक युद्ध में जिसने तोड़ दिया दुनिया का भ्रम। एक रहा है भारत सब दिन, सदा रहेगी एक, युगों युगों में है रहे भाषा भाव अनेक। आस्था और विश्वास अनेकों होते हैं मानव के, लेकिन मानवता मानव की सदा रहेगी नेक। कद से छोटा था लेकिन सा, कर्म से बड़ा महान, हो सकता है कौन, गुने वह संस्कृति का संतान। आप सभी को लाल बहादुर शास्त्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कुछ इन्हीं भावों के साथ मैं वैष्णवी लालवानी आज आप सभी को महात्मा गांधी की जन्म तिथि 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। गांधी बाबा अर्थात बापू हमारे राष्ट्रपिता न केवल एक व्यक्तित्व हैं, बल्कि संपूर्ण देश का गौरव थे, जिन्होंने अपने 2 अस्त्र सत्य और अहिंसा के बल पर न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व में अपना वर्चस्व बनाया था, साथ ही भारत को शांति दूत के रूप में पहचान दिलवाई थी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। इनकी माताजी धार्मिक परायण एवं पिता एक दीवान थे। गांधी जी पर इनका बहुत प्रभाव था। वे अपने माता पिता का आदर करते थे। उनमें अच्छे संस्कारों का बीजारोपण उनके पारिवारिक माहौल से ही हुआ था।
बचपन में अंधेरे से डर लगने पर उन्होंने अपनी दाई सास से राम नाम ग्रहण किया, जो मृत्युपरांत उनके साथ रहा। गलती पर क्षमा मांगना, दूसरों से प्रेम रखना, बदला ना लेना जैसी अच्छी बातें उनकी माँ उन्हें सिखाया करती थी, जिसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमें उनके व्यवहार में देखने को मिलते हैं। गांधी जी सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और एकनिष्ठ कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए कई बार जेल की यात्राएं की, किसानों के दर्द को समझा, बुनकरों के दुख में साझीदार बने, वही आम भारतीयों की आवाज और मुल्क की शांति के लिए अथक प्रयास किया। गांधी जी अंतिम समय तक देश को जोड़े रखने में विश्वास रखते थे। भारत की एकता, अखंडता उनका सबसे बड़ा सपना था, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान की भी बाजी लगा दी और हे राम कहते हुए शहीद हो गए। अंत में मैं यही कहूंगी, हमें गर्व है बापू तेरी शहादत पर, कुर्बान है हम तेरी सच्ची आदत पर। सत्य और अहिंसा का विचार मुक्त कर दिया हमें अंग्रेजी अत्याचार से, मगर बड़े प्यार से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा तन्वी सोमानी आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सत्य के प्रयोग करता वो, सत्य के प्रयोग करता वो अहिंसा के अवतार हैं, महावीर और बुद्ध के सिद्धांतों के साक्षात्कार है। सत्याग्रह के सूत्रधार वो, सत्याग्रह के सूत्रधार वो अहिंसक क्रांतिकार हैं, भारत माता के सपूत वो आजादी के कर्णधार है। सर्वधर्म स्वभाव के प्रेरक, सर्वधर्म स्वभाव के प्रेरक शांति दूत सरकार है, जन जन के आदर्श बने वो, गांधी एक विचार है, गांधी एक विचार है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम शिप्रा कपूर है। मैं कक्षा 8th B की छात्रा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। छोटा कद महान व्यक्तित्व और जिगर में स्वाभिमान, मंत्र अनोखा दिया राष्ट्र को, जय जवान जय किसान। सादगी की प्रतिमूर्त तुम और भौतिकता से अनजान, मंत्र अनोखा दिया राष्ट्र को, जय जवान जय किसान। सन 65 की जंग छिड़ी तो घुटने पे आया पाकिस्तान, मंत्र अनोखा दिया राष्ट्र को, जय जवान जय किसान। गुदड़ी के लाल नमन तुझे नतमस्तक सारा हिंदुस्तान, मंत्र अनोखा दिया राष्ट्र को, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। देश के वो लाल थे, बहादुर थे कर्मों से, शास्त्रों में थी निपुणता, शास्त्री थे वो जन्मों से। ऐसा प्यारा ऐसा न्यारा एक नेता था हमारा, जीवन जिसने कर्म भूमि पर कष्टों से गुजारा था, देश का बेटा वीर शास्त्री मिट्टी को जान से प्यारा था। सुप्रभात, मैं अंशिका अग्रवाल कक्षा 10वीं अ से आज शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी एक भारतीय राजनेता थे, जिन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने गुजरात के आनंद की अमूल दूध सहकारी समिति का समर्थन करके और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाकर दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। भारत के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शास्त्री जी ने भारत में हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था। वे 1947 में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। परिवहन मंत्री के रूप में वह महिला कंडक्टरों की नियुक्ति करने वाले पहले व्यक्ति थे। पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में उन्होंने आदेश दिया कि पुलिस अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियों के बजाय पानी के जेट का उपयोग करे, जिसके निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे। पुलिस मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में 1947 में सांप्रदायिक दंगों पर सफलतापूर्वक अंकुश लगाने, बड़े पैमाने पर प्रवास और शरणार्थियों के पुनर्वास को देखा। 1952 में उन्होंने चुनाव जीतकर कैबिनेट मंत्री का पद संभाला। 1964 में शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, पर दुर्भाग्यवश 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई।
उनको देश प्रति योगदान के लिए मरणोपरांत भारत रत्न खिताब प्रदान किया गया। भारत देश उनके त्याग और समर्पण को हमेशा याद रखेगा। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम रिदा फातिमा अहमद है तथा मैं कक्षा 9वीं A की एक छात्र हूँ। आज गांधी शास्त्री जयंती के पावन अवसर पे मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आओ मिलकर गांधी शास्त्री जयंती मनाएं, फिर से देश प्रेम का दीप हर रोज अपने दिल में जलाएं। आओ मिलकर गांधी शास्त्री जयंती मनाएं, नित नई खुशियों के रंगों से टूटे बिछड़े दिलों को भर जाएं। आओ मिलकर गांधी शास्त्री जयंती मनाएं। बापू के मूल्यों पे चलकर, शास्त्री जी के मार्ग पे चलकर देश को विकास के एक नए पथ पर आगे बढ़ाएं। आओ मिलकर गांधी शास्त्री जयंती मनाएं। सुनिश्चित करें कि हत्यारन राजनीति की वजह से कोई गांधी शास्त्री ना शहीद हो जाए। आओ मिलकर गांधी शास्त्री जयंती मनाएं। धन्यवाद।